السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں نشاط احمد آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل جی ایس آن لائن پر۔ سب سے پہلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے، ایک بار پلیز ویڈیو کو آپ لوگ لائک کر دیں گے۔ پہلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے، جرنلسٹ کے لیے اردو میں کون سی اصطلاح استعمال ہوتی ہے؟ مدیر ہے اور اس کے بعد جی دونوں آپشن نہیں ہوگا، عام طور پہ دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہوگا۔ جرنلسٹ کے لیے اردو میں کون سی اصطلاح استعمال ہوتی ہے؟ ادیب، صحافی۔ تو دیکھیے جرنلسٹ ساتھیوں کس کو بولتے ہیں؟ صحافی کو بولتے ہیں۔ آپشن نمبر سی والا آپ کا رائٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگلا کوشچن ہے آپ کے اسکرین پر، جی اگلا کوشچن ہے 2 نمبر میں، درج ذیل میں شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی، حسن تعلیل، لف و نشر اور تجاہل عارفانہ، اس میں کون سی یہ ہوگا؟ دیکھیے یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ سب کہاں کچھ لالا او گل میں نمایاں ہو گئی۔ نمایاں کا مطلب ظاہر ہونا، یعنی لالا او گل یعنی پھولوں کے اندر ساری چیزیں ظاہر ہو گئی۔ کیوں ظاہر ہوئی؟ خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی، مٹی کے اندر کوئی ایسی صورت ہے خوبصورتی کے جانے کی وجہ سے لگتا ہے کہ یہ گل جو ہیں پھولے گل جو ہیں باہر نکلے ہیں۔ ایسی تو علت نہیں ہے ساتھیوں، گل کا نکلنا، اس کا کھلنا، یہ ساتھیوں ایک الگ روٹین ہے۔ جب کلام میں کوئی ایسی وجہ بیان کیا جائے جو اصل وجہ نہ ہو تو اسی کو بولتے ہیں حسن تعلیل۔ تو یہ کیا ہوگا؟ حسن تعلیل۔ ایک تو آپ کا یہ ہے۔ دوسرا، اگر حسن تعلیل آپشن میں نہ ہو اور اس صورت میں اگر آپ کو تضاد آپشن میں رہے، دھیان دیجیے گا، تضاد آپشن میں رہے تو تضاد بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ کیسے لگائیے گا؟ سب کہاں کچھ لالا او گل میں نمایاں، نمایاں ہے نا جی، نمایاں، اور اس کے بعد آپ کا ہے خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں۔ نمایاں اور پنہاں، نمایاں کا مطلب ظاہر ہونا، پنہاں کا مطلب پوشیدہ ہونا، یہ دونوں بھی اپوزٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کو یاد رکھنا ہے جی۔ اس کے بعد آگے ہے 3 نمبر کوشچن میں، یہ بھی نہ پوچھا صیاد نے کون رہا کون رہا ہو گیا۔ جی اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کیا گیا ہے؟ ساؤنڈ تو ٹھیک ہے نا؟ نمایاں کا مطلب ظاہر ہونا، پنہاں کا مطلب پوشیدہ ہونا، یہ دونوں بھی اپوزٹ ورڈ ہے جی۔ یہ بھی نہ پوچھا صیاد نے کون رہا کون رہا ہو گیا، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کیا گیا ہے؟ تجنیس ہے، اشتقاق ہے، تضاد ہے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ دیکھیے رہا اور یہ رہا، رہا کا مطلب بچا ہونا، رہا کا مطلب چھوٹ جانا، تو یہ ہوگا آپ کا صنعت تجنیس ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپشن نمبر اے والا آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ اگلا کوشچن ہے، ہستی اپنی حباب کیسی ہے، یہ نمائش سراب کیسی ہے، اس شعر میں ہستی کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ ساؤنڈ کے لیے تھوڑا سا ہم یہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اگر ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ چلیے، ہستی اپنی حباب کیسی ہے، یہ نمائش سراب کیسی ہے، اس شعر میں ہستی کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ نمائش سے، سراب سے، حباب سے۔ تو ہستی اپنی حباب کیسی ہے، ہستی کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ تو ساتھیوں حباب سے۔ کس سے دی گئی ہے؟ حباب سے۔ آپشن نمبر جو ہے سی والا آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ اگلا کوشچن ہے، انگریزی لفظ سیمیلی کے لیے علم بیان میں اصطلاح مستعمل ہے، مجاز مرسل
किनाया और इस्तिआरा। देखिए सिमिली जो है वो साथियों किसको कहा जाता है? सिमिली के लिए इस्तेमाल होता है तशबीह। क्या होता है? तशबीह। और ये है नहीं। मेटाफोर के लिए इस्तेमाल होता है इस्तिआरा। ठीक है, तो सिमिली जो है ये तशबीह के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अंग्रेजी लफ्ज एलूजन के लिए इल्म बदी में कौन सी सनत मुस्तअमल है? तशबीह है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मख्तम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और मेरी भी मजबूरी है, आप समझ सकते हैं, लाइट नहीं होने की वजह से हम जो है थोड़ा सा क्लास डिस्कनेक्ट हुआ था। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब चीज ठीक है? आवाज वगैरह ठीक है? एक बार बताएं आप लोग। आवाज वगैरह ठीक है? शुरू करें। चलिए, आवाज आ रही है? आवाज वगैरह ठीक है? शुरू करें। चलिए, अंग्रेजी लफ्ज एलूजन के लिए इल्म बदी में कौन सी सनअत मुस्तअमल है? तशबीह है, तलमीह है और इस्तिआरा है। देखिए, कलाम में जब कोई तारीखी या मजहबी वाक़या बयान किया जाए तो उसको बोलते हैं तलमीह और उसी को बोलते हैं साथियों अंग्रेजी के लिए एलूजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी लफ्ज में पंचुएशन के लिए उर्दू में मुस्तअमल लफ्ज है, किनाया है, रुमूज़े औकाफ है, इस्तिआरा है। पंचुएशन के लिए साथियों बोलते हैं रुमूज़े औकाफ। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। रुमूज़े औकाफ मीन्स यानी कि ठहराव, यानी हम लोग जो ठहरते हैं, अब मुख्तसर ठहराव, वक्फा है, सेमी कॉलन है, नहीं जी, सक्ता है, वावैन है, कौसैन है, तफसीलिया है, ये सब जो होता है वो रुमूज़े औकाफ में आता है। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, मुंदरजा वाला शेर में काफिया की निशानदेही कीजिए, पैदा कर मकाम और शाम। सबसे पहले हम लोग तो जानेंगे कि रदीफ किसको बोलते हैं। रदीफ बोलते हैं जो शेर के आखिर में बार बार रिपीट होता है, जो लफ्ज वो रदीफ होता है। तो यहाँ पर पैदा कर और पैदा कर क्या होगा, हमारा रदीफ होगा। और रदीफ से पहले जो लफ्ज होगा हम वजन होगा वो क्या होगा, काफिया होगा। तो यहाँ पर हमारा मकाम और यहाँ पर शाम, तो मकाम और शाम क्या होगा, काफिया होगा। तो यहाँ पे देखिएगा आप, मकाम ये भी काफिया है और शाम ये भी काफिया है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी लफ्ज सिलोंग के लिए उर्दू में कौन सी इस्तिलाह इस्तेमाल होता है? फिक्रा होता है, रोजमर्रा होता है, इस्तिआरा होता है। सिलोंग के लिए साथियों जो रोजमर्रा, और रोजमर्रा किसको बोलते हैं, जो डेली बेसिस पर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं रोजमर्रा।
अंग्रेजी लफ्ज फ्रेज के लिए कौन सा लफ्ज मुस्तअमल है? रोजमर्रा है, फिक्रा है, इस्तिआरा है। देखिए इस्तिआरा के लिए मेटाफोर, रोजमर्रा के लिए सिलोंग, तो बच गया हमारा फिक्रा। तो फिक्रा क्या होगा? इसको बोलेंगे साथियों फ्रेज, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। इस तरह है शायरी में मुत्तसी से मुराद है हर बंद में 10 मिसरे, हर बंद में 7 मिसरे, हर बंद में 4 मिसरे। देखिए इस चीज को आप याद रखिएगा, देखिएगा 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको पूछे मुसल्लस में कितने साथियों मिसरे होते हैं तो 3 मिसरा होता है। मुरब्बा में कितना मिसरा होता है तो मुरब्बा में 4 मिसरा। मुखम्मस में कितना मिसरा होता है तो मुखम्मस में 5 मिसरा। मुसद्दस में कितना मिसरा होता है तो मुसद्दस में 6 मिसरा। मुसब्बे में कितना मिसरा होता है 7 मिसरा। मुसम्मन में कितना मिसरा होता है 8 मिसरा। मुत्तसी में कितना मिसरा होता है 9 मिसरा। और मुअश्शर में कितना मिसरा होता है 10 मिसरा। तो हमको पूछा गया है मुत्तसी, तो मुत्तसी के अंदर कितना मिसरा होगा तो 9 मिसरा होगा। नहीं तो 9 है इसमें नहीं है, तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रोशन जमाले यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम। मुंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? तशबीह, किनाया और इस्तिआरा। जी बहुत ही अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये कह रहा है रोशन जमाले यार, यानी दोस्त की जो खूबसूरती है उससे अंजुमन तमाम क्या है खूबसूरत है, ऐसे है जैसे कि दहका हुआ है आतिशे गुल। अब आतिशे गुल, आतिश का माना होता है आग और गुल माने फूल, यानी इसका माना हुआ दहकता हुआ फूल, लेकिन दहकता हुआ फूल इससे मुराद नहीं है। ऐसे है जैसे कि खूबसूरत फूल इससे मुराद है, खूबसूरत फूल इससे मुराद है। तो साथियों ये क्या है? एक मजाजी माना है, और जब कलाम में डायरेक्ट कोई मजाजी माना मुराद ले लिया जाए तो उसी को बोलते हैं इस्तिआरा। तो ये क्या होगा हमारा इस्तिआरा। और अरकाने इस्तिआरा कितने हैं तो 3 हैं। कौन कौन से? तो 1 नंबर में होगा आपका मुस्तार लहू, दूसरे नंबर में होगा आपका मुस्तार मिनहू, तीसरे नंबर में होगा आपका वजह जामे। ये क्या है? आपके अरकाने इस्तिआरा है। अगला क्वेश्चन है कहा शेने वहां का मुझे दो पता अजीजो जहां से यूसुफ गया। ये जो है ना मंदरजा बाला शेर में कौन सी सनद इस्तेमाल हुई है? तशबीह है, किनाया है, इस्तिआरा है। देखिए ये जो है ना मसनवी सहरुल बयान के अंदर होता क्या है कि साथियों जो शहजादा होता है यानी जो बादशाह का बेटा होता है उसका नाम होता है बेनज़ीर, और बेनज़ीर को माह रुख परी जो थी ना, माह रुख परी, इन्होंने 12 साल की उम्र में घर से उठाकर लेकर चली गई। जब इस बात की खबर बादशाह वक्त को लगी तो बादशाह वक्त ने कहा शे ने, शे माने बादशाह, यानी कहा बादशाह ने वहां का मुझे दो पता कि कहाँ है वो अजीजो जहां से यूसुफ गया। यहां पर जो यूसुफ है तो यूसुफ से तो मुराद यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, लेकिन चूंकि बादशाह वक्त का बेटा था तो डायरेक्ट बादशाह वक्त ने अपने लड़के को क्या कह दिया? यूसुफ कह दिया। तो किसी चीज को डायरेक्ट कह देना वही साथियों क्या होता है? इस्तिआरा होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल में पैदा हिम्मते परवाना कर वरना मर्गे शौक की परवाह न कर। जी यहां पे देखिए मुंदरजा बाला शेर में कौन सी सनद इस्तेमाल हुई है? तशबीह है, किनाया है, इस्तिआरा है। दिल में हिम्मते पैदा हिम्मते परवाना कर, ये जो पहला परवाना है इसका मतलब होता है परवाज। पहला परवाना यहाँ पे देखिए दिल में पैदा हिम्मते परवाना कर, यानी तुम्हारी जो उड़ान होनी चाहिए, तुम्हारी जो सोच होनी चाहिए वो बुलंद होनी चाहिए। तो दिल में पैदा हिम्मते परवाना कर, हिम्मते परवाना यानी तुम्हारी उड़ान बड़ी होनी चाहिए, तुम्हारी उड़ान लंबी होनी चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ वरना मर्गे शौक, वरना मौत की जो है ना परवाह न कर। जी फिर आपको ये परवाना करने का मतलब है कि फिक्र करना। देखिए लफ्ज दोनों एक ही है लेकिन साथियों माना अलग है। पहला परवाना अलग और दूसरा ये, इसी को बोलते हैं तजनीस से जायद मुरक्कब। तो ये हमारा जो है वो आपका क्या होगा? तजनीस होगा, और ये ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
کبھی شاخو سبزو برگ پر کبھی گنچو گلے خار پر، میں چمن میں چاہے جہاں رہوں میرا حق ہے فصل بہار پر۔ کبھی شاخو سبز پر، شاخ کا مطلب ٹہنی، سبز کا مطلب پتا، برگ پر ہے نا جی اور برگ پر کبھی غنچاؤ گولو خار پر، یہ ساری چیزیں جو ہیں باغ سے ہیں۔ میں چمن میں جائے جہاں رہوں، چمن کے اندر ہی شاخ ہوگا، سبز ہوگا، برگ ہوگا، گنچا ہوگا، گل ہوگا اور خار بھی ہوگا، یہ سب چمن میں ہے۔ تو یہ کیا ہوگا آپ کا؟ یہ ہو جائے گا آپ کا مرعات النظیر۔ یعنی جب کلام میں ایک ایسا لفظ بیان کیا جائے کہ اس کے متعلق ہی تمام الفاظ ہو اور اس کے اندر تضاد کا کیا ہو، نسبت نہ ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مرعات النظیر ہوتا ہے۔ یہاں کے سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا اور دن کو جوں توں شام کیا۔ مندرجہ بالا شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تشبیہ ہے، تضاد ہے، مرعات النظیر ہے۔ جی یہاں کے سفید و سیاہ، یہاں پر دیکھیے گا سب سے پہلے ایک لفظ ہے آپ کا سفید۔ سفید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو سفید کا مطلب ہوتا ہے نیکی، اور دوسرا لفظ ہے آپ کا سیاہ۔ سیاہ کا مطلب ہوتا ہے برائی، سیاہ کا مطلب برائی۔ اور اس کے بعد ساتھیوں یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو آگے ایک اور ملے گا اسی کے اندر، رات، یہاں پر رات ہے اور یہاں پر دن ہے نا، رات ہے اور پھر یہاں پر کیا ہے؟ آگے دن ہے۔ اور پھر یہاں پہ دیکھیے گا رات کو، یہاں پہ دیکھیے صبح ہے اور یہاں پر آپ کا شام ہے نا، صبح ہے اور پھر کیا ہے؟ آپ کا شام ہے۔ یہ سب ایک دوسرے کا الٹا ہے، اپوزٹ ہے، تو یہ کیا ہوگا آپ کا ساتھیوں؟ تضاد ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تضاد ہوگا۔ آپشن نمبر جو ہے آپ کا بی والا جو ہے وہ رائٹ ہو جائے گا۔ اگلا کوشچن ہے آپ کے اسکرین پر، مندرجہ بالا شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ مندرجہ بالا شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ کیا ہے بھائی؟ او اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ تلمی ہے، تضاد ہے، مرعات النظیر۔ یہاں پہ دیکھیے کہا گیا ساغر جم، جم سے ساتھیوں ہوتا ہے جمشید، اور جمشید جو تھا یہ ایران کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا جو ساغر مطلب پینے کا جو پیالہ تھا اس میں پوری دنیا دکھائی دیتی تھی، یعنی یہ کافی فیمس ہے اور یہ ایک تاریخی لفظ ہے۔ جب کلام میں کوئی تاریخی یا مذہبی واقعہ پیش کیا جائے تو اسی کو کیا بولتے ہیں؟ تلمیح بولتے ہیں۔ تو یہ ہمارا کیا ہو جائے گا؟ تلمیح ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ تلمیح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپشن نمبر جو ہے اے والا آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ اگلا کوشچن ہے، نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، گور مانے بھی کہ قبر ہوتا ہے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، مندرجہ بالا شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تضاد ہے، تجنیس ہے، تلمیح ہے۔ نہ گور سکندر یعنی کہا گیا کہ نہ سکندر کا قبر ہے اور نہ دارا کا قبر ہے، سب کے نام مٹ گئے۔ تو ساتھیوں یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، یہ آپ کا کیا ہوگا؟ تلمیح ہوگا۔ اگلا کوشچن ہے، زیر زمین سے آتا ہے جو گل سوزے بکف، قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ، یعنی زمین سے جو پھول نکلتا ہے یہ اس لیے نکلتا ہے کیونکہ قارون نے اپنا خزانہ لٹا دیا تھا، اسی وجہ سے۔ تو مندرجہ بالا شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ حسن تعلیل ہے، مرعات النظیر ہے، تضاد ہے۔ تو دیکھیے جب کلام میں کوئی ایسی وجہ بیان کیا جائے جو حقیقت پر مبنی نہ ہو تو اسی کو بولتے ہیں حسن تعلیل۔ تو یہ کیا ہوگا ہمارا؟ حسن تعلیل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگلا کوشچن ہے، ہو دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ، کوہسار یعنی پہاڑ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو، مندرجہ بالا شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ مرعات النظیر، حسن تعلیل، کنایا۔ ہو دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو۔ یہاں پہ دیکھیے کہا گیا کہ ایسا نظارہ ہے پہاڑ کا جیسے جی پانی بھی جو ہے نا موج اسی لیے موجیں مار رہا ہے، پانی تھپیڑا اسی لیے مار رہا ہے کہ وہ پہاڑ کا نظارہ دیکھنے کے لیے۔
तो एक बात बताइए, पानी का मौजे मारना वो तो उनका रोजमर्रा का ये है, वो अपना रूटीन है, न कि वो कौसार को यानी पहाड़ को देखने के लिए। तो जब कलाम में कोई ऐसी वजह बयान किया जाए जो हकीकत पर मबनी ना हो, जो असल वजह ना हो, तो उसी को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हुस्न तालील। तो ये क्या होगा? हमारा हुस्न तालील होगा। अगला क्वेश्चन है, मैं कश को हवस आयाग की है, परवाने को लौए चराग की है। मुंदरजा झैल में कौन सी सनद का इस्तेमाल हुआ? मुरातुन नजीर, हुस्न तालील और किनाया। देखिए एक शेर है, एक शेर साथियों, एक बार इस शेर को मैंने बयान भी किया है, मगज को बाग में जाने न दो, मगज को बाग में जाने न दो, वरना बेजा खून परवाने का होगा। इस शेर का मतलब क्या है? इस शेर का मतलब यह है कि मगज को, मगज माने यानी शहद की मक्खी को बाग में जाने न दो, यानी अगर शहद की मक्खी बाग में जाएगी तो वहां से वो रस चूस कर लाएगी, और रस चूस कर लाकर उससे फिर क्या बनेगा? मोम बनेगा। और जब मोम बनेगा तो मोम बनने के बाद जो वो जलेगा, तो उसके जलने की वजह से जितने सारे पतंगे हैं, परवाने हैं, वो सारे के सारे उसमें आके झुमट जाएंगे और उनकी सारे की मौतें हो जाएंगी। यानी कहा गया, इसीलिए हमको पहले ही बाग में जाने से मगज को रोक देना है, यानी मगज को बाग में जाने न दो, वरना बेजा खून परवाने का होगा, यानी किसी बुराई को पनपने से पहले ही उसे हमें कुचल देना है। तो ये जो है ना, मैं कश को हवस आयाग की है, मैं कश को हवस आयाग की है। यहां पर देखिएगा आप साथियों, आयाग का मतलब होता है प्याला, अयाग का मतलब प्याला, मैकश का मतलब पीने वाला। जो पीने वाला है, शराबी है, उसको सिर्फ प्याला चाहिए, जाम चाहिए। परवाने को लौ चराग की है, यहां पर परवाना मतलब परिंदा, ये सॉरी जो पतिंगा होता है। अब देखेंगे जब आप जलाते हैं, क्या जलाते हैं? आग जलाते हैं, तो उस पे पतिंगा सब आके झुमट जाता है। चूंकि जैसे मैकश यानी शराबी को हवस किसकी होती है? अयाग की, यानी प्याला की, मिले जल्दी हम पिए, उसी तरह परवाने जो होते हैं यानी जो पतंगे होते हैं, उसको लौए चराग की होती है, यानी उसी तरह उसकी लत होती है। लेकिन एक चीज यहां पर आप समझिएगा, इस शेर में जो है ना, आप लौ पर गौर कीजिए। तो लौ का मतलब तो आपने एक ये समझा कि शोला, लेकिन दूसरा माना लौ का क्या है? लौ का मतलब आपने एक समझा शोला, लौ का माना एक आपने समझा शोला, लेकिन जो शायर है उसने साथियों इसका माना लिया है शौक, इसका माना लिया है शौक। यानी जिस तरह मैकश को हवस आयाग की है, उसी तरह परवाने को ये शौक है, शोला नहीं, परवाने को ये शौक है चराग की। तो ये आपका जब किसी लफ्ज के दो माना हो, एक माना ये करीब, दूसरा माना ये बईद, आवाम जो है वो माना ये करीब समझती हो और शायर जो है वो माना ये बईद मुराद ले, तो यहां लौ का माना एक शोला है, लौ का माना एक शौक है। आवाम शोला समझ रही है जबकि शायर मुराद ले रहा है शौक, तो ये क्या होगा? आपका सनअते इहाम होगा। क्या होगा? इहाम होगा। ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वादाए शाम पे की हमने अबस जाग के सुबह, वो उसी वक्त न आते अगर आना होता। मुंदरजा झैल में कौन सी सनद का इस्तेमाल हुआ है? जे मुबालगा है, तजाद है, किनाया है। वादाए जे शाम पे हमने अबस जाग के की सुबह, देखिए यानी तुमने वादा किया था कि हम शाम को आ जाएंगे, हमने अबस, अबस का मतलब बेकार, झूठ, जाग के सुबह कर दिया, यानी तुम्हारे शाम को नहीं आए थे, तुम्हारे न आने की वजह से हमने तो पूरी रात जगा है। साथियों किसी चीज को आप क्या कर रहे हैं कि यहां पर बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। हमने तो वादा किया था शाम का, अगर हम शाम को नहीं आए तो तुम सो जाना, यानी वादाए शाम पे हमने की अबस जाग के सुबह, यानी तुम्हारे जो वादा था शाम पे उसी पर हम जागते रहे और सुबह कर दिया। तो किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, इसी को बोलते हैं सनअत में सनअते मुबालगा। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में जो सही है उसकी पहचान कीजिए। रुबाई 4 मिसरों पर मुश्तमिल एक मुख्तसर नज्म है। रुबाई जे हज्ज में कही जाती है। रुबाई के लिए 24 औजान मुकर्रर किए गए हैं। देखिए
रुबाई में साथियों 4 मिसरे होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। रुबाई जो है साथियों बहरे हज्ज में लिखी जाती है, ये बात भी सही है। रुबाई के लिए 24, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, रुबाई के लिए जो साथियों टोटल औजान है यानी वजन जो है वो 24 है, ये बात भी सही है। तो ये तीनों के तीनों राइट हो गए, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि हस्बे वाला में से एक से जायद। एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। हैयत के एतबार से कसीदा की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं, 4 किस्में हैं, 2 किस्में हैं। हैयत के एतबार से कसीदा साथियों इसकी 2 किस्में हैं। एक कसीदा जो होता है वो आपका होता है खिताबिया कसीदा, खिताबिया कसीदा, और जो दूसरा आपका होगा वो होगा साथियों आपका तमहीदिया कसीदा। तो हैयत के एतबार से कसीदा की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। मौजू के एतबार से कसीदा की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, 2 किस्में हैं। देखिए मौजू के एतबार से कसीदा जो है वो 2 टाइप का होता है। एक कसीदा होता है मदहिया, दूसरा आपका होता है हिजविया। मदहिया वो कसीदा जिसमें किसी की तारीफ की गई हो, और हिजविया वो कसीदा जिसमें किसी की तारीफ नहीं यानी कि बुराई की गई हो। तो मौजू के एतबार से कसीदा की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुराही है न सहबा है न कोई जाम है साकी, तेरे रिंदों की महफिल में खुदा का नाम है साकी। मुंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल किया गया है? सनत इहाम, सनत तजाद और सनत मुरातुन नज़ीर। सुराही का मतलब क्या होता है? जो शराब पीने का एक जो प्याला टाइप का होता है वो होता है सुराही। सुराही है न शहबा है, शहबा का मतलब होता है शराब, यानी न बर्तन है न शराब है न कोई जाम है साकी और न कोई प्याला है। यहाँ पर ये सब एक ही से रिलेटेड है। तेरे रिंदों की महफिल में खुदा का नाम है बाकी। रिंद का मतलब होता है शराबी, तेरे रिंद का मतलब शराबी, और ये साकी का मतलब होता है पिलाने वाला। नहीं, तो यहां पर सारी चीजें जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। जब एक दूसरे से रिलेटेड हो लफ्ज तो वो क्या होता है? सनअते मुरातुन नज़ीर। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब हाथ उसकी नब्ज पर रखा तबीब ने, तबीब माने डॉक्टर, यानी जब उसके हाथ को डॉक्टर ने छुआ, महसूस ये किया कि बदन में लगी आग है, यानी उसने ये महसूस कर लिया कि पूरे बदन में उसके आग लगा हुआ है। तो ये क्या है? तशबीब होगा, किनाया है, मजाज मुरसल है, या हस्बे वाला में से एक से ज्यादा। नब्ज को छूकर पूरे बदन का पता लगा लिया, यानी कि एक जुज से साथियों कुल का पता लगा लिया कि ये बुखार से यानी इसको फीवर है। तो जब हाथ उसकी नब्ज पर रखा तबीब ने, महसूस ये किया कि बदन में लगी आग है, तो ये साथियों क्या होगा? आपका मजाज मुरसल। मजाज मुरसल जो है उसको बोलते हैं जिसमें साथियों जुज बोलकर कुल मुराद लिया जाए, कुल बोलकर जुज मुराद लिया जाए, सबब बोलकर मुसब्बब मुराद लिया जाए। तो ये सब क्या होता है? मजाज मुरसल होता है। खत बढ़ा जुल्फें बढ़ी, काकुल बढ़े गैसू बढ़े, हुस्न की सरकार में जितने बढ़े हिंदू बढ़े। मुंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया है? तशबीह का, मुरातुन नज़ीर का, मजाज मुरसल का। देखिए खत का मतलब होता है जो बाल का ये वाला जो पर्सन होता है वो खत है। जुल्फ का मतलब भी बाल, काकुल का मतलब होता है जो घुंघरू वाले बाल होते हैं वो बाल, और गैसू का मतलब भी बाल। ये सारी चीजें जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं ये आपका क्या होगा? मुरातुन नज़ीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया हो उसे क्या कहा जाता है? खिताब, लक़ब और कुन्नियत। देखिए आपके अगर किसी खूबी या कमाल की वजह से कोई नाम फेमस हो गया तो उसको बोलते हैं लक़ब। जैसे आपकी आवाज़ बहुत अच्छा है तो आपको बोला जाता है बुलबुले हिंद, ये आपका हो गया लक़ब। और जो खिताब होता है ये साथियों हुकूमत की जानिब से जो नाम दिया जाता है, जैसे नोबेल इनाम, जैसे जे आपका पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। और कुन्नियत वो नाम जो नाम रिश्ते के बिना पर पुकारा जाए, जैसे अबू जिस नाम के शुरू में लगा हो वो क्या होता है? कुन्नियत होता है। वतन, माँ बाप और ख़ानदान के ताल्लुक़ से जो नाम मशहूर हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? खिताब बोलते हैं, कुन्नियत बोलते हैं, इस्म बोलते हैं। वतन और माँ बाप और ख़ानदान के नाम से जो नाम साथियों फेमस होता है उसको बोला जाता है
कुन्नियत। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अंग्रेजी लफ्ज जी सिनोनिम्स के लिए कौन सा लफ्ज मुस्तामल है? मुतरादिफ है, मुतजाद है, इस्तिआरा है। अंग्रेजी लफ्ज जी जिसके लिए साथियों जो है वो मुतरादिफ अल्फाज यानी कि पर्यायवाची अल्फाज।